top focus this hour is the North India cold wave. A thick blanket of fog has covered most parts of Delhi NCR and visibility on the roads is zero. Around 10 trains to Delhi from various parts of the country are running late, and flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport has also been affected by dense fog conditions. Meanwhile, dense fog has also affected Uttar Pradesh and other parts of the country. The IMD has predicted that dense fog and prevailing cold wave conditions are unlikely to abate in parts of northwest India during the next 2 to 3 days. Of course, the cold wave now persisting, and in fact we have reporters joining us from across North India who are going to give us an update on the cold wave condition. Meanwhile, my colleague Brian Thomas joins us from Delhi. Brian, if you could tell our viewers where you are at the moment and what is it looking like on ground? Asavri, in the morning, the conditions were very poor, be it in terms of the fog. There was fog, and yesterday also there was a very dense layer of fog. But now, if you talk about the foggy-like conditions, there is definitely some respite, because the sun, there has been sunrise. If we show you the visuals of the very India Gate, you can actually see and understand that the situation right now at where we are standing is better, because yesterday, the India Gate was not even visible from where we are standing. It was in a very poor conditions, and also it was regarded as one of the coldest, day in the national capital. But yes, now, if you talk about the foggy-like conditions, it's still better. If we show you the visuals of the roads also, you can actually understand that the visibility is not an issue now, because the visibility is pretty much clear, because the sun has, there's a sunrise. So that is the reason why the visibility, the issue that was happening in the national capital in terms of visibility, it's not there anymore. And if you show you the visuals, there also there are water sprinkler, buses and vehicles also, which are going on full, swing. In every 5 minutes, there's a water sprinkler, vehicle are, going to ensure that, the roads are in position. And even the security arrangements also made tight in terms of the Republic Day preparations that is going. If I request my camera person Sudhir to, pan the camera and show that here you can see that the Republic Day preparations is also going on amidst this cold wave and the fog that is engulfing the very national capital. Even though the fog-like conditions are not prevalent, but yes, the cold wave is still there. The temperature is also right now 7 degrees Celsius. But amidst this also, you see there is the group of cadets are just doing their, Republic Day preparations, and these preparations are going in full swing. Like, I'll again request my camera person to show how gorgeous this entire this entire visuals look on screen, and see that amidst all this also there is so much going on. These preparations are going on at full swing, where they are maintaining every possible way to do justice to the Republic Day in a very grand occasion. Asavi. Right, absolutely, Brian. As you were seeing, those visuals look lovely, but of course, cold wave, the fog continues to prevail. It continues to engulf the national capital. Meanwhile, my colleague Mahinder Mahi joins us from Noida to give us an update on the same. Mahinder, over to you. What is it looking like on ground? देखिए, अगर ठंड की बात करें तो कल के मुकाबले नोएडा के लोगों को काफी राहत मिली है। कल जिस तरीके से 24 घंटे नोएडा के तमाम इलाकों में कोहरा देखने को मिला था, जो तापमान था वो 6 डिग्री तक पहुंच गया था। मगर आज की बात करें तो सुबह का वक्त है, और कहीं ना कहीं सुबह ही जो सूर्य देवता है उन्होंने दर्शन दे दिया, जिसके कारण जो लोगों को ठंड है, ठंड से बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, हम कल से परसों पिछले 24 घंटों पे हमने देखा किस तरीके से नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में जो कड़ाके की ठंड तो पड़ी रही थी, मगर उसके साथ साथ जो कोहरा था वो देखने को जरूर मिल रहा था। मगर आज की बात करें तो आज नोएडा के तमाम इलाकों में जो सुनहरी धूप है वो निकल चुकी है। लोग जो सुनहरी धूप का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं धूप से जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसमें बदलाव आया है। सुबह के वक्त जो तापमान 7 डिग्री था वो अब 10 से 11 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस धूप से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि मकर संक्रांति बीत जाने के बाद जो ठंड है उसमें काफी कमी आती है, काफी मौसम में बदलाव होता है, खिलखिलाती धूप निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला। कल पूरे देश में मकर संक्रांति की
संक्रांति सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज नोएडा के तमाम इलाकों में घना जो जिसे कहते हैं जो कोहरा था वो हट चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से जो धूप है वो नजर आ रही है चारों तरफ। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि किस तरीके से जो नोएडा एनसीआर के तमाम इलाके हैं वहाँ घना धूप जो छाया है, जिसके बाद जो लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में जो घना कोहरा था वो लोगों को सता रहा था, जो ठंड थी वो लोगों को कहीं ना कहीं सता रही थी। मगर आज जब इस घने कोहरे से लोगों को राहत मिली और जो खिलखिलाती धूप निकली तो इससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे थे वो भी काफी परेशान थे, घर में बूढ़े बुजुर्ग थे वो काफी परेशान थे। मगर कहीं ना कहीं इस जो सुनहरी धूप है उससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है देखिए कि बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी और बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 8वीं से जो नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए थे 16 जनवरी तक। अगर ऐसे ही खिलखिलाती धूप निकलती रहेगी तो मुझे लगता है जो उनकी स्कूली छुट्टी थी जिन पर प्रभाव पड़ रहा था उनकी स्टडी पे कहीं ना कहीं वो अपने वापस स्कूल जा सकेंगे, फिर से अपनी पढ़ाई को जो कंटिन्यू कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड नोएडा एनसीआर के इलाकों में पड़ती है। उस टाइम जो तापमान है वो 4 डिग्री 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो तमाम जो लोग हैं दूसरे राज्यों से जो ड्राइवर आते हैं उनके लिए नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में रेन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की जाती है ताकि कोई भी मुसाफिर ठंड से परेशान ना हो। उनके लिए बाकायदा जो खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और कल पुलिस का एक और रूप भी देखने को मिला। कल नोएडा की सड़कों पर जो पुलिस थी वो लोगों को चाय पिलाने का काम कर रही थी, वहां उनसे पूछताछ कर रही थी कि आप पे कंबल है या नहीं है, तो उनको कंबल भी वितरण कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस ठंड से बचने के लिए लोगों पे अब जो घर पे हैं वो हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाहर हैं वो चाय की चुस्की ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिसके बाद आज अगर आपने भी देखा कि तस्वीरें किस तरीके से नोएडा के तमाम इलाकों में जो धूप है उसने जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल किया है, मीडियम किया। क्योंकि सुबह के वक्त यही तापमान 60 डिग्री था, मगर अभी फिलहाल की बात करें 9:30 बजने वाले हैं और जो तापमान है वो 11 से 12 डिग्री तक पहुंच गया। जी Right, absolutely. Stay on with us. We're in fact also being joined by my colleague Shakti, who's joining us live from Bihar. Shakti, if you could take our viewers to the temperature that is being recorded in Bihar, and again, as far as the fog is concerned, is there clarity? Are people able to see? Is there good visibility on ground or not? देखिए, बिहार में पिछले 4 से 5 दिनों से जो है सीवियर कोल्ड चल रहा है। और बताएं कि आपको कि ठंड के सुकरन हवा के कारण जो है ठंड में और इजाफा हो गया, जिसके कारण जो है लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। और आपको बताएं कि ठंड के कारण न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी जो है काफी फॉग ठंड लोगों को फील हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि फॉग के कारण भी जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। बिहार के तमाम जिलों में जो है कुहासा लगा हुआ है। और पटना की अगर बात करें तो पटना में आज का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताएं कि इसके कारण जो है फॉग के कारण जो कई फ्लाइटें जो है लेट चल रही है। साथ ही साथ 8 से 10 फ्लाइटें जो है अब जो है कल रद्द कर दी गई थी। और कई ट्रेनें हैं राजधानी समेत कई ट्रेनें जो है 15 से 20 घंटे डिले चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जो है अलर्ट के रूप में बच्चों को स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल तमाम स्कूलों को बंद कर रखा है। हालांकि जो 9 से 12 तक के जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में क्लास जो ओपन करने के लिए जो है स्कूल प्रशासन को जो है प्रशासन के द्वारा जो है जिला प्रशासन के द्वारा आदेश दिए गए हैं। और आपको बताएं कि मौसम विभाग ने इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया और कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक भी बिहार के लोगों को ठंड से जो है इसी तरह से जो है उनको जूझना पड़ सकता है। और साथ ही साथ 2-3 दिनों तक जो है राहत की कोई खबर फिलहाल बिहार के लोगों को नहीं मिलने वाली है। आपको बताएं कि बिहार के कई जिलों में जो है टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के करीब पहुंच गया है। और खास करके उन इलाकों में जो कि नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, सीमांचल के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो है मौसम की मार और लोगों को झेलनी पड़ रही है। और पटना की बात करें तो पटना में फिलहाल जो है कुहासा लगा हुआ है, लेकिन बिजली आज जो है कल के कंपेरिजन में थोड़ी सी राहत लोगों को फॉग से जरूर मिली है, लेकिन ठिठुरन से अभी भी फिलहाल लोगों को राहत नहीं है। और आने वाले 3-4 दिनों में लोगों को इसी तरह के मौसम के ठंड से लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। जी All right.
Meanwhile, we're also in fact being joined by my colleague Ashik Mir from Srinagar. Ashik, how cold is it in Srinagar? What is the visibility like? What details can you share with our viewers? And if you could in fact also show us what is looking like on ground? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीते 1 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में जो है ठंड और खुश्क मौसम है, और इस ठंड और खुश्क मौसम के चलते जो है कहीं ना कहीं आम इंसान जो है परेशान दिखाई दे रहा है। अगर हम कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट जो है पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर बर्फ का कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। कई सारे टूरिस्ट से हमने बात की जिनका कहना था कि कश्मीर हम इसलिए आते हैं ताकि बर्फबारी को जो है एंजॉय कर सके, लेकिन आज जो है कश्मीर की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो आज के मौसम में लगभग 10 से 12 फीट बर्फ जो है इन पहाड़ी इलाकों में जमा हुआ करती थी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा। कश्मीर के ये पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फ होती थी इस मौसम की अगर हम खास तौर पर बात करें, और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बर्फ का कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। ये हाल खाली कश्मीर का ही नहीं है बल्कि कई एक ऐसी जगह, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, पुंछ, राजौरी, वहां पर भी यही हाल है, क्योंकि मौसम में जो है काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो जितने टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आते हैं, क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल लगातार खुश्क है, और इस खुश्क मौसम के चलते जो है आम इंसान भी अब दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। कश्मीर की अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, डल झील से लेकर दरियाओं की अगर बात करें तो दरिया भी अब सूखने लगे हैं, क्योंकि खुश्क साली की वजह से जो है मौसम में तब्दीली नहीं है, ना बारिशें हो रही है ना बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो अब आम इंसान भी दिन ब दिन सड़कों पर आ रहे हैं। लोगों को पानी की किल्लत यहाँ पर ज्यादा सता रही है, लोग जो है पानी के लिए भी अब तरस रहे हैं। कश्मीर में जो है हालात फिलहाल खुश्क है 1 महीने से लगातार, और मौसम विभाग की अगर सुने तो 24 जनवरी के बाद ही मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर के मौसम में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। जी, all right. In fact, still with us on the broadcast is Sanjay Rathore. Is joining us live from Haryana. Sanjay, if you could take our viewers through the situation in Haryana at the moment. हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई, और पिछले 2 दिन की मैं बात करूं तो लगातार जो फोग है वो अधिक है और विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से हरियाणा की बात करूं तो कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। केएमपी की बात करूं तो वहां पर एक साथ 6 जो गाड़ियां हैं वो टकराई हैं, जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार तापमान में भारी गिरावट है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें पहाड़ी इलाकों से ज्यादा जो हम बात करें सर्दी वो दिल्ली एनसीआर में, और साथ खासतौर पर गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में भी लगातार तापमान में भारी जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, और साथ ही साथ अब अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उसकी भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बदलते हुए मौसम के बीच अब दमे और जो सांस के मरीज हैं खासतौर पर या फिर हार्ट की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अस्पतालों में अब मरीजों की भी लंबी जो लाइन है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं पर जहां कुछ लोग इस बढ़ते हुए यानी कि टेम्परेचर में जहां लुफ्त उठा रहे हैं, तो वहीं पर हरियाणा गवर्नमेंट की बात करूं तो 3री तक यानी कि 3rd क्लास तक के जो स्कूली छात्र हैं उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई है, स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है, और उसके बाद की जो जिम्मेदारी है जिला उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। यदि वो अपने हैंड पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि अन्य जो क्लासेस हैं उनकी भी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी की बात करूं तो अभी जो है थोड़ा सा जो है मौसम साफ जरूर हुआ है, थोड़ी धूप जरूर खिली है, लेकिन कहीं ना कहीं शीतलहर का जो कहर है वो लगातार जारी है, जिससे कि गुरुग्राम या फिर हरियाणा की जनता की बात करूं काफी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 120 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर डेंजर जोन घोषित किया गया था, और ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर रिफ्लेक्टर जो लाइट टेप्स हैं वो लगाने की कवायद शुरू की थी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में इस तरीके की जो घटना है वो सामने आ रही है। विजिबिलिटी काफी कम है। जिस हाईवे के ऊपर जो वाहन रफ्तार बढ़ते थे कहीं ना कहीं अब उनके जो पहिए हैं वो थमते नजर आ रहे हैं, धीमे होते नजर आ रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.